Good morning students, welcome to your accountancy lecture. Today let's continue with our chapter NPO with another important terms. So first one is entrance fees or admission fees. Now I have told you that in income and expenditure account only revenue receipts and revenue expenses are to be taken. Capital receipts and capital expenses are to be shown as the liabilities under the balance sheet. Now we are going to start with the terms. First is entrance fees और admission fees. रजे स्कूल्स में भी तो एडमिशन फीस लेते हैं, तो एवरी ईयर एडमिशन फीस ली जाती है, तो इट मीन्स इट इज़ अ रेकरिंग इनकम. ठीक है. सो एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस मीन्स व्हेन द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब or any institution, if they want to enter into that year, ठीक है, they will pay a certain amount of fees which is known as entrance fees and it is treated as the revenue income. It comes on the credit side of the income and expenditure account. Next is our life membership fees. As the name suggests you, कि one time payment of the membership fees will be used as a token of membership for the whole life. So it means it becomes your capital receipt. Clear? And it is to be added to the capital fund on the liability side of the balance sheet. It is not accounted as the income because as life member makes one time payment and avails services all throughout his life. Next is special receipts. Special receipts are based on for special occasions. Means अगर आपने कोई रिसीव किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने कोई इनकम रिसीव की है तो वो स्पेशल रिसीट्स में आएगा. फॉर एग्जांपल contribution received for annual dinner. Such dinner contributions are credited to the separate account annual dinner and expenses against these receipts are debited to it. The balance is transferred to the income and expenditure account because it is a receipt, it is not a fund. ठीक है. तो जितनी भी receipts हैं, जितने भी expenditure हैं, एक particular fund के relation में वो उसमें ही adjust हो जाते हैं and the balance is transferred to the income and expenditure account on the income side. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोनेशंस. डोनेशंस क्या होती हैं? जैसे चैरिटीज़ होती हैं. ठीक है. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफन रिसीव्स डोनेशन. डोनेशंस जो है रजे जनरल पर्पज़ के लिए भी हो सकती हैं, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हो सकती हैं. अगर तो डोनेशन रिसीव हुई है फॉर द जनरल पर्पज़ देन इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इनकम एंड क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़ देन इट विल बी ट्रीटेड एज द लाइबिलिटी ऑन द साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बिकॉज क्योंकि वो डोनेशन जो आपने रिसीव की है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ली है. इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो वो अमाउंट है वो पे करनी ही पड़ेगी. तो दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. नाउ लेट्स सी दिस पॉइंट. Specific donation. In case the donor specifies the purpose for which the donation can be used, it is a specific donation. For example, a donor donates 10 lakh for a library. ठीक है. तो जब लाइब्रेरी बनेगी तो वो 10 लाख उसको देने पड़ेंगे. इट मीन्स द डोनेशन रिसीव्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द लाइब्रेरी, नॉट फॉर द अदर पर्पसेज. इट इज़ अ स्पेसिफिक डोनेशन. इट इज़ कैपिटलाइज्ड एंड इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर. नाउ इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने क्या दिया है? एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस एंड जनरल डोनेशंस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स, हेंस दे आर क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये तो हमने डिटेल में कर लिया. नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 10. इसको करते हैं. कहता फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिफरेंट आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. ठीक है. गिविंग the effect to the additional information given below. Raje, this is the receipts and payment account. Here it is written donation for pavilion. Pavilion क्या होता है रजे? Pavilion होती है स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ एक बिल्डिंग. ठीक है. जहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो अपने क्लोथ्स वगैरह चेंज करते हैं, वो पेविलियन होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ये डोनेशन दी है फॉर पेविलियन. इट मीन्स डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है. तो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो कहाँ जाएगी? आपकी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में. नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी. ये गवर्नर्स पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. उसके लिए एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, बाय गवर्नर्स पार्टीज एक्सपेंसेस. ठीक है. तो जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे.
नेक्स्ट हमारे पास डोनेशन। डोनेशन है, अकेली डोनेशन लिखी है तो वी विल एज्यूम इट कि इट इज़ फॉर जनरल पर्पस। अगर हमारे पास इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिया है तो इट विल कम अंडर द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स सी द एडजस्टमेंट, व्हाट एडजस्टमेंट्स हियर आर गिवन। अमाउंट स्पेंट ऑन पेविलियन 20 लाख, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है लास्ट लेक्चर में भी कि अगर किसी एसेट के ऊपर भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इट इज़ टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड एंड अगेन टू बी ट्रीटेड एज द एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ डोनेशन फॉर पेविलियन 10 लाख की डोनेशन थी, ठीक है। आपके पास पेविलियन के लिए डोनेशन था 10 लाख, बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टीज वॉज 30,000। गवर्नर्स की पार्टी के लिए आउटस्टैंडिंग एक सब्सक्रिप्शन कितना था, 30 लाख। देन कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2018, कैपिटल फंड ओपनिंग दिया हुआ है आपको कितना, 10 लाख, ठीक है। उसमें आप ये जो पवेलियन का फंड ट्रांसफर करोगे 20 लाख, ये ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में, और ये 20 लाख एज एन एसेट भी यहाँ पे शो होगा बिकॉज अभी ये कंस्ट्रक्शन में है। क्लियर, ये हम पहले कर चुके हैं पॉइंट। नेक्स्ट है पेविलियन फंड एज एट 31 मार्च 2018। स्टार्टिंग में आपके पास पेविलियन में जो पेविलियन फंड था 40 लाख था, तो 40 लाख में आप लोग इसका जो डोनेशन आपने रिसीव किया इस पर्टिकुलर ईयर में 10 लाख वो ऐड कर दोगे, ठीक है। डोनेशन आप ऐड कर दोगे, लेस क्या करोगे आप कि आपने यहाँ से 20 लाख जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया किसको, कैपिटल फंड को, ठीक है ना। ये 20 लाख का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया आपने कैपिटल फंड को, तो यू विल गेट हेयर 30 लाख। क्लियर। Now here one point is given, that is contribution for governors party. This is the receipt side. It means आपने गवर्नर पार्टी के लिए कोई contribution रिसीव किया है 2 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टीज़, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो हमारे पास हमें रिसीव हुआ था दैट वाज 30 लाख। तो इट मीन्स टोटल रिसीट्स आपकी होगी 2,30,000, एक्सपेंडिचर था 2,40,000। इट मीन्स 10,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर यू हैव डन फॉर योर गवर्नर्स पार्टी। सो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको डेबिट साइड में लेके चलेंगे। गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंसेस थे 2,40,000 और उसकी सब्सक्रिप्शन मिला के हमारे पास 2,30,000 अमाउंट हुई थी और एक्सपेंडिचर बचा था 10,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इट मीन्स एक्रूड इनकम होगी ना। एक्रूड इनकम इज योर मीन्स द इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, सो इट इज़ योर एसेट, इट यू हैव टू टेक दिस 30,000 ऑन द बैलेंस शीट साइड, ठीक है। इट मीन्स जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनकी डबल एंट्री जो है वो इफेक्ट करेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी और बैलेंस शीट को भी, जिस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते थे इन द सेम वे। Now our next term is legacy. Legacy means will. Will means जो मतलब at the time of the death or before death जो हम distribution कर देते हैं among our kids, that is known as legacy. Clear? Now one is known as the legacy can also be done for as a specific donation, as a general donation. If it is a general donation then it is a revenue receipt. If it is a specific donation then it can be treated as the liability on the balance sheet. Now let's see this thing. कहते legacy is the amount received as a donation by a NPO under will ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। मीन्स अगर कोई डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, अगर वो कोई डोनेशन देता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, लिगेसी कहलाती है अंडर एनपीओ। क्लियर। अब द डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाई कंडीशंस फॉर इट्स यूज। इन केस नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड इट इज अकाउंटेड एज जनरल डोनेशन एंड इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई इट इज अकाउंटेड एज द स्पेसिफिक डोनेशन। इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज फॉलोज। If it is a general donation, it means no purpose is specified, then you will take it as a revenue receipt और इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करोगे। और अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीट करोगे then it is a capital receipt and it is credited to the specific fund, यानी कि जिस फंड के लिए यूज़ करने के लिए बोला होगा उसी फंड में आप इसको क्रेडिट करोगे। सपोज प्राइज फंड है तो इट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इट बीइंग अ फंड, प्रिंसिपल ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग आर अप्लाइड। जो हमने किया कि जितना भी फंड के रिलेशन में एक्सपेंडिचर है वो फंड में ही ऐड होगा और जो उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो डिडक्ट होगा और जो उसके पर्टिकुलर रिसीट हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल,
Stock of sports material is shown in the asset side of the balance sheet. However, a part of it may be consumed during the year. Sports material consumed during the year is debited to the income and expenditure account because जो consume हो गया वो आपके expenditure है और balance आप किस में carry forward कर लोगे, बैलेंस शीट में. इन केस ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल इज शोन एज कंज्यूम्ड is sold, the sale proceeds are credited to income and expenditure account and shown an income. In case old sports material appears in the balance sheet and is sold, gain if any on the sale of the sports material is credited to the income and expenditure account, that is shown as an income. It means ये आपका रेवेन्यू इनकम कहलाएगी और इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे ले जाओगे. और अगर आपका ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल रिजल्ट इन लॉस, then you will debit it because it is your loss. ठीक है. After that, 7th point is sale of old assets. देखो रजे, जो स्पोर्ट्स मटेरियल हैं वो चीज़ें आप कहाँ लेके जाओगे, वो आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं वो उसको इफ़ेक्ट करेगा. सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, आपकी ओल्ड एसेट्स हैं, ठीक है. इट मे रिजल्ट्स इन दी प्रॉफिट इफ़ द सेल वैल्यू इज़ मोर देन द बुक वैल्यू, और लॉस इफ़ द सेल वैल्यू इज़ लेस देन द बुक वैल्यू. ठीक है. कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जो बुक वैल्यू थी उसी पे ही सेल हो गया. बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन दैट डेट ऑफ द सेल इज डिटर्मिन्ड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल. ये तो हमें पता ही है. सेल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट वाइल गेन इफ एनी इज क्रेडिटेड और लॉस इफ एनी इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्लियर रजे. इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा, सपोज इट हैज़ बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 4 लाख. तो 4 लाख अमाउंट जो है वो आप एसेट साइड में ले जाओगे और जो 60,000 प्रॉफिट होगा वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे ऑन द क्रेडिट साइड. अगर लॉस होगा तो यू विल शो इट ऑन द डेबिट साइड. Clear? Now let's start with illustration 11. Prepare furniture account for the year ended 31st March 2019 in the books of the social club under the following alternative cases. तो let's start with the first alternative case. इस केस में आप फर्नीचर अकाउंट कैसे बनाओगे. कहते हैं फर्नीचर अकाउंट as on 1st April 2018, it means it is your balance brought down. You will write here 2 balance brought down with 2,20,000. Furniture having book value as on 1st April 2018 20,000 was sold at a gain of 20% on 31st December 2018. It means अप्रैल से लेके 31st December 2018 तक आपने इसको यूज़ किया है. इट मीन्स आपने उसको कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया, 9 मंथ्स के लिए. तो यू विल गिव अ डेप्रिसिएशन अगर होगी तो 9 मंथ्स के लिए होगी. ठीक है. फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1st अक्टूबर, एक नया फर्नीचर परचेज किया आपने 1st अक्टूबर को, उसके लिए आप लिखेंगे टू बैंक. ठीक है. एंड चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, ये भी लिखा है. तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, इस फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 1 अप्रैल को, 20,000 थी. 20,000 के ऊपर आप पहले 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन दोगे. ठीक है. 20,000 के ऊपर 10% 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आप लगाओगे. तो ये आएगी 18,500. ठीक है. देन आफ्टर इट हैज़ सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसने इसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया. तो इट मीन्स जो 18,500 का 20% करके इसमें ऐड करोगे, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट है. तो ये 22,200 ये चीज़ आपकी क्या आ गई है, सेलिंग वैल्यू. ठीक है. और डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की कितनी आई थी, 1,500. आपने +1 में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया हुआ है, सेम उसी को ही आपने फॉलो करना है. ये 9 मंथ्स के लिए यूज़ किया. उसके बाद ये जो परचेज की थी आपने 1 लाख का, इसके ऊपर आप बचे 10% डेप्रिसिएशन डालोगे. अक्टूबर को परचेज किया था, अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर नहीं, ये पूरा साल ही यूज़ किया. उसके बाद आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च मीन 6 मंथ्स के लिए आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे. ठीक है. ये 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन लगेगी. ठीक है बच्चे. और 20,000 इसमें से वैल्यू चली गई तो बाकी कितना बचा, 2 लाख. वो तो आपने फुल ईयर के लिए यूज़ किया, तो 2 लाख के ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन जाएगी. क्लियर. इस तरह से फिर इसकी बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी. ठीक है.
नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर अकाउंट, सेकंड केस है। सेकंड केस में फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 4,40,000। आप यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज एट 1 अप्रैल 2018 40,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2018। वही सीक्वेंस है कि 9 मंथ्स के लिए आपने उसको यूज़ किया है और उसको 20% लॉस पे सेल कर दिया, ठीक है। नाउ फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। तो सिंपल सेम वही केस है। रजे 10% है तो 40,000 थी, 40,000 पे के ऊपर 20% आपका कितना बनता है, ठीक है। 20% इंटू सॉरी इट्स 10% ना, 20% ऑफ 9 मंथ्स, 40,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आई 3,000। तो 3,000 आपने इसकी बुक वैल्यू से लेस किया, यू विल गेट अब बैलेंस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू 37,000। इसको 20% लॉस पे सेल किया तो 20% निकाला, इसका लॉस आया 7,400 जो आपने डिडक्ट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू शो की है, ठीक है। जो प्रॉफिट या लॉस है वो आप अलग से शो करते हो, तो इसका लॉस होगा तो इस साइड जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इस साइड जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपने कहा फर्नीचर कॉस्टिंग 3 लाख जो था दैट वाज आल्सो परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, एक नया परचेज हो गया। तो यहाँ पे 2 बैंक 3 लाख के ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ्स की, ठीक है। तो आपने ये डेप्रिसिएशन लगा दी 6 मंथ्स के लिए और ये डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए लगेगी। 40,000 की बुक वैल्यू का सेल हो गया था, 4 लाख रह गया था, 4 लाख के ऊपर आपने इसके ऊपर पूरी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है। बाकी बैलेंसिंग फिगर आप बाय बैलेंस कैरी डाउन में ले जाओगे और ये जो बैलेंस लेके जाओगे ये आपका किस में शो होगा, एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। इन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला था तो नहीं बनाई है इन्होंने। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट केस है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। अब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स रजे ये जो है दैट इज़ टू बी क्रेडिटेड टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज इट इज़ योर रेकरिंग इनकम, इट इज़ योर रेवेन्यू इनकम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो डू कंसिडर दिस थिंग वेरी केयरफुली। सब्सक्रिप्शन इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, क्लियर। सो इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। सब्सक्रिप्शन क्या है कि सब्सक्राइब करने के लिए वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है फॉर एनपीओज। Subscription received whether they relate to current, previous और next period is shown in the debit side of the receipts and payment account। जब आपको receipts and payment account दिया जाता है तो उसमें पूरी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की जो आपने रिसीव किया, पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग थी, इस साल जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया वो अमाउंट भी दी होती है। सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर whether received or not are shown on the credit side of the income and expenditure account because income and expenditure account में आप वही शो करते हो जो आपकी इनकम रिसीव होती है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। चाहे रिसीव की है चाहे नहीं की है, आपने उसको क्रेडिट साइड पे शो करना है। सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड, जो सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड है इट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दैट विल बिकम योर एसेट, you will take it on the asset side of balance sheet, and subscription received in advance for the year are shown on the liability side of the balance sheet. Now let's see how you will do the calculation of the subscription for the current year. सिंपल सी बात है रजे, हमने कल भी किया था। एक हमारे पास होता है accrued income. Accrued income means income due but not received, income due but not received। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है। ड्यू है बट रिसीव नहीं है, ड्यू हो गई है अपने करंट ईयर में लेकिन रिसीव नहीं है, लेकिन है तो इसी ही पीरियड की ना, तो इट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सपोज हम लेते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो दैट इज़ टू बी डिडक्टेड, ठीक है। तो जो एट द एंड ऑफ द ईयर है वो इसी ईयर की है तो हम ऐड कर देंगे। ये देखो सपोज ये 2018-19 का ईयर है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे डेट है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। अगर तो आपकी एक्रूड इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, एक्रूड इनकम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो इट मीन्स वो इस ईयर की नहीं है, वो लास्ट ईयर की है, तो वो इस ईयर का पार्ट नहीं है,
इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, लेस, बिगिनिंग वाली लेस, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई ड्यू है देन इट मीन्स इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर ओनली, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन ऐसी है विच इज़ प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन या प्री रिसीव्ड इनकम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर 1 अप्रैल को रिसीव किया तो इट मीन्स इसी करंट ईयर से बिलोंग करती है। ठीक है, इसी ईयर की है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड, इन द बिगिनिंग हम करेंगे ऐड। अब अगर एट द एंड होगी तो इट मीन्स वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, तो यू विल जस्ट डिडक्ट दिस। ठीक है, सो दिस रूल्स यू हैव टू फॉलो। देखो यहाँ पे भी यही किया है, सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है। ठीक है, देन ऐड करोगे आप इसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, देन लेस करोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐड करोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेस करोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर, बाकी अमाउंट जो है दैट यू विल शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर, ये चीज़ आई थिंक इट्स मच गुड टू प्रिपेयर रादर देन दिस। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स and additional information, compute income from subscription for the year ended 31st March 2019 and show it in the final accounts of the club। ठीक है, आपने इसको फाइनल अकाउंट्स में शो करना है। आपको रिसीट्स एंड साइड पे हमें क्या दिया है, एक पूरी सब्सक्रिप्शन दे दी 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की सब्सक्रिप्शन दी है। हमारे पास ईयर कौन सा है, एज एट 31st March 2018, एज एट 31st March 2019। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, as at 31st March 2018, 31st March 2019, इट मीन्स ये वाली जो सब्सक्रिप्शन है ये 1 अप्रैल 2018 टू 31st March 2019 है, जो कि हमारा ईयर है। ये वाली जो है ये 1 अप्रैल 2017 टू 31st March 2018 है, जो कि हमारा ईयर नहीं है। नाउ लेट्स सी दिस थिंग, दे हैव रिटन